With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student friend follower, today we are going to discuss about Toni Morrison, and we're going to discuss one assignment. Discuss jazz as a symbolic title. So we are going to discuss one of assignment in Toni Morrison's novel Jazz. Discuss jazz as a symbolic title. So this is a very important assignment, and usually it occurs in exam. So today we'll discuss in detail. So let's discuss about Toni Morrison life. She was born in Lawrence, Ohio in February 1831, and she died. She was born 1831 and graduated from the Howard University in 1953. She was died in 2019. Recently she died. So then parents George and Rama Wells, and then the Howard University players worked at the Texas Southern University, Houston. In 1957, she returned Howard Universities as a member of the faculties. Let's see next slide. She married in 1958, but she hadn't a good married experience because she hadn't good relation with her husband. Her first son's Harold Ford and was born in 1961. Her marriage deteriorated. Deteriorated का मतलब होता है that was not stable, that was not good, and then while pregnant with their second child, marriage deteriorated. Joined a small writers group as the temporary escape from the unhappy married life. As I told you that married life was not very happy. So she had a deterioration, and while she was giving birth to second child. In 1964, Morrison worked as a textbook subsidiary Random's House in New York as associate editor. So she also worked as an associate editor. Next, from 1971 to 1972, Morrison was associate professor of English at the State University of New York. So he worked 1971 to 1972 as associate professor in New York University. From 1976 to 1977, she was visiting lecturers at the Yale University in New Haven. So in 1983, Morrison left her positions at the Random House, having worked there almost 20 years. So she left Random House while she was working as editor. She left and she joined another job. In 1984, she was named the Albert Schweitzer Professors of the Humanity at the State University of the New York, Albany. Next slide. So, theme and the practice of the Morrison novel. Morrison had written many novels like The Bluest Eyes, Jazz, Beloved, Paradise, Song of Solomon. So these are having certain motives, themes behind it. If we study thoroughly, as jazz, it is a representation of the separate identity and culture and the music, and separate identification for the black people. Black people, they started movement, especially in Harlem and New York like and Virginia like places. They started writing their own cultural work, like own identifications. They even writing in literature, culture, painting, and like that. So sense of loss, this is also the main themes we discuss.
her novel Sense of Loss, Freedoms and the Badmans, you will see in her novel. Root, Community and Identity, Responsibility, you see the responsibility, Ancestors and the good and evils, extreme situations and the loss of the innocence. So these are the main themes in her novels. This one, Freedom and Badmans, Responsibility, good and identification, even identification of the black people is also a themes. The problems of the black people, suffering of the black people, she portrays in her novel. Let's next slide. So Morrison's main work, if we talk about her main works, her work are like that, The Bluest Eyes 1970, she wrote this, and then Sula 1973, Song of Solomon 1977, and then Tar Baby, so 1981, and then Beloved 1987, and Jazz 1992. So we are just going to study 1992. So this novel Jazz basically reflection of the black identity, because that was created, that was a special novel that was created by to show and portray the black people ideology, their feeling, their way of dealing, or the people. She has shown all these things in the background, and today we are going to discuss Jazz title, the symbolic significance of this title novel, especially Jazz. We'll study today. So today we are going to study Jazz 1992, Paradise Lost, Paradise 1997. It's also her novels, and Love 2003, and then Mercy 2008. So these novels she has written, and we are going to discuss Jazz, and today we'll discuss one assignment. So assignment is, what is the significance of the title? Very important. You can see for past 5-year paper, you will see that this question occurs again and again. What is the significance of the title, especially Jazz? So these are the awards, something like. So let's see what I'm going to discuss today. I'm going to discuss one of assignment. Let me share with you. So here is one. This one. Hope you are seeing on your screen. Are you seeing this on your screen? Theme and motive and symbols. Discuss the symbolic significance of the title Jazz by Morrison, PU 2011. So this question occur again and again. It's a very important question, and we'll discuss. So let's see. This is the assignment we are going to complete today. Here are some points I want that you should write prior to understand this assignment. So very first point I want that you should write as a heading. If you got a pencil and paper ready, I want that you should write some points. So here are some points for you in a way to understand this assignment. So very first point, discuss, question is discuss the symbolic significance of the title. They can ask you, discuss the symbolic significance of the title. So what is the significance of this title? Jazz basically representation of the black people. Very first thing is that this jazz novel, it shows the music that was created by the black people. So people like black, they've been living, they are African, and they are living in especially the USA, but they don't have their identification. They felt this. They black people. They are great in number, but they don't have their identification. They want that others they should be identified separately. So what are their identification? Identification is their color, their culture, their behavior, their way of living, their style of living, and their music.
their eating, their habit, living, dealings, all these are these show separate cultural identity. So how they are going to create it? They created their new painting, they created their new music, they created their new culture, they created their new kind of styles over there. So that is how they can represent their identification. तो पहली बात ये है कि ये जैज़ जो है ये एक सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन के लिए है, और ये जैज़ जो उसने टॉपिक लिया है, अपना टाइटल लिया है अपने नावल का, ये बेसिकली एक म्यूज़िक है जो ब्लैक लोगों ने क्रिएट किया था, और वो म्यूज़िक जो है पूरे नावल की बैकग्राउंड में साथ साथ चल रहा है। अच्छा जी, जैज़ अफ्रीकन, पहली बात तो ये है कि ये जैज़ जो है ये एक डांटे एक राइटर था इटालियन, तो वो ट्रियोलॉजी की फॉर्म में लिखता था, मीन टू से 3 हर चीज़ को, जैसे वो 3 ट्रियोलॉजी में, जैसे मैं हमने डिस्कस किया था एगमेमनॉन जो है ह्यूमैनिटी और द बियर्स, और इस तरह उसके भी 3 पार्ट्स होते थे, या 3 मीन टू से ट्रियोलॉजी होती थी। तो ये भी एक ट्रायलॉजी की फॉर्म में है, तो उसमें ज़रा लिख लें। पहला उसने बिलवड लिखा, दूसरे नंबर पे उसने जैज़ लिखा, फिर उसने पैराडाइज लिखा। तो ये एक ट्रायलॉजी की फॉर्म में है। ट्रायलॉजी का मतलब होता है 3, दैट हैज़ अ 3 पार्ट, उसको ट्रायलॉजी कहते हैं। तो ये तो एक उसकी ट्रायलॉजी है जो उसने लिखा। ये मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पहली हेडिंग लिखें कि ये जैज़ जो है ये टाइटल जो इसका लिया गया है, ये उसकी एक सेपरेट कल्चरल और म्यूज़िक और ब्लैक पीपल की आइडेंटिफिकेशन थी, ये उसने बतौर टाइटल रखा। और ये एक ट्रायलॉजी की फॉर्म में था जिसमें उसने बिलवड लिखा पहला नावल, फिर उसने जैज़ लिखा, फिर उसने पैराडाइज लिखा, यानी ये तीनों जो है एक ट्रायलॉजी की शक्ल में आते हैं। डेंटिस ट्रियोलॉजी, डेंटिस जैसे डेंटे एक राइटर था, पोएट था इटालियन, तो वो भी ऐसे लिखता था ट्रायलॉजी की फॉर्म में, तो इसकी तरह इसने लिखने की कोशिश की। दूसरे नंबर पे डॉर्कस जो है, डॉर्कस का जो इशू है, डॉर्कस रिप्रेजेंट करती है ब्लैक पीपल की सफरिंग को। हाउ? जब डॉर्कस को वहाँ पे जो है उसको किल करता है, तो साथ ही हम ये देखते हैं कि कोई भी उसके पास नहीं आ रहा, और नो बडी इज गोइंग टू सपोर्ट हर। ब्लैक वर्सेस ब्लैक का आपस के साथ क्या क्लैश है, हम पूरे नावल के अंदर देखते हैं कि एक जो ब्लैक पीपल हैं उनको बड़ा डिप्राइव्ड रखा गया है। दे आर नॉट वेल मैनेज्ड, इवन समबॉडी हैज़ किल्ड एंड नो बॉडी बॉदर्ड। ये भी उसने बड़ा, इवन कि अमेरिका जैसे सिटी में किसी का कत्ल हो जाना और नो बॉडी बॉदर्ड, किसी ने बॉदर ही नहीं किया क्योंकि वो ब्लैक थी। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है इसी टाइटल का जो उसने बताया है कि डॉर्कस की किलिंग जो है वो एक डिप्राइवेशन को जाहिर करती है। इस डिप्रीवेशंस, ये एक डिप्राइव्ड एक मिनट से ब्लैक कम्युनिटी को जाहिर करती है। नो बॉडी बॉदर्ड इवन ब्लैक आर किल्ड। अगर ब्लैक लोगों को, जैसे रिसेंटली अब ब्लैक को मार दिया गया है, तो अब तो ह्यू एंड क्राई है, लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि रेशियल कत्ल चल रहा है या किलिंग चल रही, रेशियल किलिंग चल रही। तो अब तो लोग बड़े यानी सेंसिबल हो गए मीडिया की वजह से, लेकिन उस वक्त तो किसी को मार दिया जाता, नो बॉडी बॉदर्ड, कि ये तो स्लेव लाइक लोग हैं, इनका क्या बॉदर करना। तो दूसरा पॉइंट है कि डॉर्कस की जो किलिंग है वो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में चल रही है, और वो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि ब्लैक पीपल आर सफरिंग, कि ब्लैक पीपल के साथ साथ जो हालात हैं, रिलेशन हैं, ताल्लुकात हैं, ब्लैक वर्सेस ब्लैक हैं, ब्लैक वर्सेस वाइट हैं, ब्लैक और वाइट का क्या ताल्लुक है, ब्लैक और ब्लैक का क्या ताल्लुक, ब्लैक वर्सेस वाइट का वहाँ पे कंसेप्ट आता है जब गोल्डन ग्रे को पता चलता है, जब वो 18 साल 17 साल का होता है कि मेरा बाप जो है वाइट है, मेरी मदर जो है वीरा ल्यूज जो है वो एक वाइट वेमन है, और मेरे बाप ने मेरी मदर के साथ रिलेशन बना के बहुत बुरा किया। नो बॉडी लव्ड मी, नो बॉडी ट्राई टू लव मी, नो बॉडी कम्स नियर टू मी, so that is why I'm suffering. I will go and I will kill my father Henry Lestroy because he has done great sin bringing me in this world. उसने मेरी मदर के साथ रिलेशन बना के बहुत बुरा किया, मैं उसे जाके कत्ल करूँगा। तो हम देखते हैं कि गोल्डन ग्रे किस लिए जाता है। गोल्डन ग्रे बेसिकली बेटा है हेनरी लेस्ट्रॉय, और वीरा ल्यूस जो है ग्रे जो है वो उसकी वाइट वुमेन है और वो मदर है। तो हम ये सारी चीज़ें
वहाँ देखते हैं। सो लेट्स सी अगला पॉइंट। लाइट का इशू है लेकिन हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, फिर उसके बाद मैं असाइनमेंट बताऊँ। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि मदरहुड थीम इज टोटली devoid. It is totally empty from the motherhood theme. There is no motherhood theme. हम देखते हैं कि इसके नावल, स्पेशली टोनी मॉरिसन के नावल में हमें कोई भी थीम नज़र नहीं आता मदर का, कि मदर का रिलेशन नहीं दिखाती वो, या तो अगर वो दिखाती है तो वो ऐसे हमें दिखाती है कि किसी आंट ने उसको परवरिश की उसकी। मिसाल के तौर पर जो है जो कि अब उसका कोई फादर का पता नहीं है। टॉक अबाउट द वॉयलेट की मदर जो है वो नहीं है, उसकी दादी जो है ट्रू बेली जो है उसने उसको पाला है। अब थोड़ा सा आगे आ जाएं, एलिस मैनफ्रेड जो है वो भी उसकी आंट है, वो भी उसकी गार्डियन है। अब डॉर्कस की भी मदर नहीं है कोई। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो करैक्टर हैं वो सफरिंग ऐसे कि जैसे अडॉप्टेड किए हुए हैं। तो वो सारे जो अमेरिकन वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन बैठे हुए हैं वो भी बेचारे ऐसे समझते हैं कि उनकी भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको भी ऐसे अडॉप्ट किया हुआ है जैसे अडॉप्टेड स्लेव्स होते हैं। स्लेव मीन नौकर, जो काम करने वाले हैं। तो वो ब्लैक अमेरिकन जो वहाँ पे अपने आप को क्या समझती हैं, स्लेव समझती हैं। तो ये इसका थीम जो है उसने साथ रखा है। उसने मदर का रिलेशन नहीं दिखाया इसके अंदर, ये भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे जी। ये आप लिख ले पॉइंट ताकि आपको ये लिखना आसान हो जाए, साथ साथ समझ आ जाएगी। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि मदरहुड के थीम से टोटली डिवोर्ड है, DEVOI। डिवोर्ड का मतलब होता है खाली। सो दिस नावल इज टोटली डिवोर्ड फ्रॉम मदरहुड का जो कंसेप्ट है वो उसने नहीं दिखाया। ऐसे जैसे डिप्राइव्ड लोग दिखाए हैं। और वीरा ल्यूज जो है, वीरा ल्यूज की भी मदर नहीं दिखाई, डॉर्कस की भी मदर नहीं दिखाई, जो की भी मदर नहीं दिखाई, वो भी कंफ्यूज सी दिखाई है जो कि बिल्कुल नीम पागल है। वॉयलेट जो है उसकी भी बेचारी की मदर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़ाहिर करती हैं कि ये बेसिकली इट शोज़ द पीपल लाइक ब्लैक, दे डोंट हैव देयर द गार्डियंस, दे डोंट हैव नो बॉडी टू सपोर्ट देम, दे डोंट हैव देयर मदरलैंड। ऐसे लगता है कि जैसे उन ब्लैक लोगों की तरह उनकी भी कोई मदरलैंड नहीं है। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मदरहुड वर्सेस मदरलैंड। अफ्रीकन अमेरिकन बेसिकली कम्युनिटी जो है वो अपनी मदरलैंड से बिल्कुल महरूम हैं, ये दिखाया गया। तीसरा देखिए, चौथा पॉइंट देखिएगा, जैज शोज द साइकी ऑफ द पीपल। जैज़ जो है वो एक साइकी बताती है लोगों की, उस वक्त के लोग जो हैं वो कैसा फील करते हैं। स्लेव शोज इन ऑल द स्टोरीज ऑफ द नावल। स्लेवरी जो है हमें पूरे नावल के अंदर नज़र आती है। चौथा पॉइंट लिखें, जैज़ जो टाइटल है वो शो करता है साइकी ऑफ द पीपल। जैज़ नावल ये हमें शो करता है साइकी ऑफ द पीपल, हो पीपल बिहेव, द स्लेवरी इज शोन थ्रू आउट द नावल। हमने देखा कि लोग जो हैं जिप्सी और नोमैडिक और इस तरह की पोजीशन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी उनको नई आइडेंटिफिकेशन मिल रही, तो वो न्यूयॉर्क हार्लम की तरफ जा रहे हैं, वर्जीनिया से और वुड से जंगलों से किसकी तरफ जा रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यूयॉर्क। जैसे जो और दूसरी वॉयलेट जो हैं वो भी वहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं। जैज़ इज़ द हिस्टोरिकल कल्चरल आइडेंटिटी, और हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे। जैज़ बेसिकली एक म्यूज़िक है, और वो उसने टाइटल इसलिए लिया है कि जैज़ जो है ये म्यूज़िक बनाया कालों ने था, ब्लैक पीपल ने बनाया था, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन को ज़ाहिर करता है, इसलिए उसने इसका टाइटल ही रख दिया है। और वो पूरे बैकग्राउंड पूरे नावल के अंदर हमें नज़र आता है। उसके बाद स्लेवरी जो है वो पूरे नावल में स्टोरी के साथ साथ हमें नज़र आती है। स्लेवरी किस शक्ल में नज़र आती है? स्लेवरी टॉक अबाउट द पीपल लाइक द हेनरी लेस्ट्रॉय, वो भी एक स्लेव था। गोल्डन ग्रे, तो वो भी एक स्लेव है। और जो है वो भी इस तरह की पोजीशन में है। सो ब्लैक पीपल दे आर कंटिन्यूसली दे आर सफरिंग। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखें कि माइग्रेशन इज द मेन थीम ऑफ द नावल। इसमें आपको करैक्टर जो है माइग्रेट करते हुए नज़र आते हैं। हाँ जी, कौन कौन माइग्रेट करता है हम उन करैक्टर के नाम लिखेंगे और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ये पांचवा पॉइंट है, लिख लें कि माइग्रेशन इज आल्सो थीम ऑफ द नावल।
अब माइग्रेट कौन कौन करता है? वीरा ल्यूस जो है वो माइग्रेट करती है, वो गोल्डन वो वर्ड्सवर्थ ग्रे की बेटी है, जो कि एक प्लांटेशन वेल्दी प्लांटेशन ऑफिसर है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो बड़ा रिच है, लेकिन उसको प्रेग्नेंट उसकी बेटी को प्रेग्नेंट किसने किया? हेनरी लेस्ट्रॉय ने, जो कि एक ब्लैक था। तो वो उसको निकाल देता है, उसे कहता है, ट्रू वैली को कहता है कि ये पैसे लो और इसको ले जाओ यहाँ से, ये ना हो कि मेरी बेइज्जती हो। अब वीरा ल्यूस जो है ये भी माइग्रेट करती है, ये बेल्टीमोर आ जाती है, मैंने डिस्कस किया। गोल्डन ग्रे जो है वो अब बेल्टीमोर जहाँ वो रहता है वहाँ से वो किसकी तरफ जाता है? वो अपने फादर की तरफ जाता है, जो कॉटेज में कहीं जंगल में रहता है, वो भी वहाँ से यानी हम माइग्रेट करता नजर आता है। हेनरी लेस्ट्रॉय जो है वो भी माइग्रेट करता है, वो कहाँ होता है? उसे भी निकाल दिया जाता है। जो है वायलेट, वो रहते कहाँ होते हैं? वो रहते होते हैं वहाँ पे ही बेल्टीमोर कहीं इलाके में, और वो फिर अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? वो ट्रैवल करते हैं हार्लम न्यूयॉर्क की तरफ, यानी वो भी ट्रैवल करते हैं, हम ये लिखेंगे। जो और वायलेट का हम देखेंगे माइग्रेशन, और ट्रू वैली जो है वो भी उनके साथ ही माइग्रेट करती है वीरा ल्यूज के साथ, जो कि वाइट वुमेन थी। So mostly the character, they are migrating from the wild and that from the woods area, जंगल से या जंगली इलाकों से, जो जंगलात के इलाके हैं जहाँ वो रहते हैं जंगलों में, वहाँ से हम देखते हैं कि वो अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए, कोई आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए न्यूयॉर्क हार्लम की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे शायद ब्लैक पीपल डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं। Due to the economical and social prejudice, we have seen that mostly character, they are moving from the woods towards to the Harlem, New York area. तो हार्लम न्यूयॉर्क एरिया में वो आ रहे हैं। तो जिन्होंने ट्रैवल किया मैंने नाम बता दिए। वीरा ल्यूस का लिखेंगे, वीरा ल्यूस ग्रे जो है उसने, गोल्डन ग्रे, हेनरी लेस्ट्रॉय, जो एंड वॉयलेट, ट्रू वैली, ये सारे लोग जो हैं माइग्रेट करते हुए नजर आते हैं। एक कैरेक्टर और है जो माइग्रेट करता है उनके साथ, उसका नाम विलियम द यंगर जो है। विलियम ये मेलवनीज जो होती है उसका नेफी होता है, ऊपर सब स्टेयर पे रहता है, उसका कमरा भी खाली होता है। जो है वो लेता है, वो भी एक जिप्सी जैसा बिहेवियर उसका दिखाया गया है। वो हेयर टू देयर जिप्सी होते हैं, नमैडिक ये होते हैं, आपको ये जो लोग होते हैं एक जगह पे डेरे डालते हैं फिर आगे जाते हैं, इनको कहते हैं। अच्छा, ऑर्फन का थीम जो है ये भी इसके अंदर दिखाया गया है। ऑर्फन मीन टू से कि हियर इज द थीम ऑफ द ऑर्फन। आपको ये नावल, ये जो नावल है, इससे क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जैज बाय मॉरिसन। आपसे वो डिस्कस करती हैं, डिस्कस द थीम, मोटिव एंड सिंबल इन द नावल जैज। तो वो आपसे थीम पूछे, मोटिव पूछे, सिंबल पूछे, आपने यही लिखना है। वो आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पूछे, आपने यही लिखना है। सो यू शुड नॉट वरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब छठा पॉइंट लिख लें, ऑर्फन इज द मेन थीम और मेन मोटिव। यानी ऑर्फन जो है वो भी एक ऑर्फनेज जो है, ऑर्फनेज का मतलब था यतीम होना। तो ऑर्फन जो है ये भी एक बड़ा मेन थीम है इसका। कैसे, अब कौन कौन ऑर्फन है हम उसमें डिस्कस करेंगे। जो है वो भी एक ऑर्फन था, वॉयलेट जो है वो भी एक ऑर्फन थी, फादर नहीं था। डॉर्कस जो है वो भी एक ऑर्फन थी। सो रेज्ड बाय द आंट्स, this is ultimately showing the slavery position of the people they are adopted. They are adopted by the rich people, they have adopted them and they are just living like a slave. Hope you got the point कि ये जो स्लेवरी ऑर्फन का थीम है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? It shows that the people like the Joe, the Violet and Dorcas, they all are slaves, they are black people, but the thing is that they are adopted by the rich people, और rich people ने उनको अडॉप्ट किया हुआ और उनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऑर्फन का थीम जो है ये भी हमें इसके अंदर मिलता है। आगे नेक्स्ट लिखिएगा, सिंबलिज्म कहाँ कहाँ हमें मिलती है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर सिंबलिज्म है। म्यूज़िक जो है वो इटसेल्फ एक सिंबॉलिक टाइटल, यानी जो उसका टाइटल है वो इटसेल्फ एक सिंबॉलिक है। कैसे, वो रिप्रेजेंट करता है म्यूज़िक को, और म्यूज़िक अल्टीमेटली 1920 में जो मूवमेंट वहाँ पे चली थी कल्चर में, आर्ट में, पेंटिंग में, कि हम अपनी लहदा से आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे, लहदा से पहचान बनाएंगे, लहदा से हम अपना कल्चर बनाएंगे, पेंटिंग और कल्चर में और राइटिंग में और नावल में, पोइट्री में, हर जगह। तो ये म्यूज़िक भी उनका एक आइडेंटिफिकेशन थी ब्लैक लोगों की। तो जैज़ जो है
वो एक सिंबॉलिक एक सिंबल है, ठीक है जी। तो ये उनके कल्चर और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन को ज़ाहिर करता है ब्लैक पीपल। उसके बाद रेड विंग जो बर्ड है वो वाइल्ड की अलामत है। वाइल्ड मीन कि एक जैसे कोई जंगल होता है, जंगली चीज़ों की अलामत है। रेड विंग बर्ड्स, अगर किसी बर्ड के रेड विंग्स हैं तो वो एक वाइल्ड अलामत है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायलट ने जो केज्ड किए हुए हैं बर्ड्स को, वो एक केज्ड वोमेन की अलामत है कि वो अपनी मर्जी से सेक्सुअल पार्टनर नहीं चुन सकती। हमने देखा कि डॉर्कस ने ट्राई किया कि वो सेक्सुअल पार्टनर अपनी मर्जी से चुन ले, और चूंकि उसने अडॉप्ट किया था अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, उसके पास पैसा नहीं था, ज्वेलरी का शौक था, तो वो किसकी तरफ हो गई, वो जो की तरफ होगी, जो कि एक बूढ़ा शख्स है, जबकि वो एक यंग है, 17 साल लड़की है। लेकिन उसने अपना सेक्सुअल पार्टनर अपनी मर्जी से चुनने की कोशिश की तो अल्टीमेटली उसे मौत मिली। तो जो रैबर्ट जो उसने केज्ड किए हुए हैं, वायलट ने जो केज्ड किए हुए हैं बर्ड्स अपने, मैंने बताया था कि वो परिंदों को दाना डाल रही है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो उसने केज किए हुए हैं बर्ड, वो एक वोमेन की केज की अलामत है कि वोमेन जो है वो केज्ड है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, और शी इज़ अ स्लेव एंड शी इज़ बीइंग यूज एज अ सेक्स स्लेव। तो इसलिए ये यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो म्यूज़िक है, जैज़ जो है वो एक म्यूज़िक की अलामत है ब्लैक लोगों की, और उसमें न्यू ऑरलिन एक इलाका है, न्यूयॉर्क इलाका है, वर्जीनिया और वुड जो है, इस तरह के इलाके दिखाए गए हैं वर्जीनिया के रिलेटेड, और ये सारे इलाके जो थे ब्लैक पीपल इसमें काफ़ी वर्क कर रहे थे। उसके बाद डॉर्कस की जो यूथ है वो इट्सल्फ एक सिंबॉलिक है। ओल्ड जो है वो एक लस्ट की अलामत है, डॉर्कस एक यूथ की अलामत है। डॉर्कस इसमें डिस्कस होती है ना, फीलर्स, डॉर्कस, ये दोनों जो हैं यूथ की अलामत है, ब्लैक यूथ की। और ओल्ड जो मैन है जो, वो एक लस्ट की अलामत है। आप द ब्लूएस्ट आई में देखें तो जो पिकोला होती है, उसका जो फादर होता है वो उसको रेप कर देता है, यानी अपनी बेटी को रेप करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रंकर्ड होता है और अक्सर ड्रिंकिंग करता है, तो अल्टीमेटली वो उसी ड्रंकर्ड कंडीशन में he considered her daughter just like wife and he raped। तो ओल्ड मैन जो है वो लस्ट और एक मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पर्सन, मैनिपुलेशन ऑफ मेल पार्टनर दिखाई गई। डॉर्कस जो है वो किसकी अलामत है? डॉर्कस जो है वो बॉडीज यंग एंड ओल्ड। अब डॉर्कस और वायलट जो है ये दोनों यंग और ओल्ड के दरमियान जो क्लैश है वो दिखाया गया इसकी शक्ल में। उसके बाद 8वां जो है पॉइंट जो मैंने इसी असाइनमेंट से बनाए हैं सारे, ये इन्फ्लुएंस फ्रॉम द जैज ब्लू। हम क्या देखते हैं? इन्फ्लुएंस जैज ब्लू, और यानी इन कंक्लूजन हम देखते हैं कि राइटर ने क्या क्या चीज़, राइटर किस किस से इन्फ्लुएंस है। एक तो जैज़ म्यूज़िक से इन्फ्लुएंस है जो कि उनकी कल्चरल अलामत है, एक आइडेंटिफिकेशन है सेपरेट। उसके बाद ब्लूज़ जो है जो डिप्रेशन, परेशानी है वहाँ पे, उनसे मुतासर है वो भी। और गॉस्पेल का जो म्यूज़िक है वो उससे, फोक लोर जो है कहानियाँ जो लोगों की, वो भी उनसे भी वो मुतासर है, कल्चर से मुतासर है। और ब्लैक पीपल के लिविंग स्टाइल को उसने डिस्कस किया। इसके अंदर स्टाइल जो है उसका वो म्यूज़िकल और मैजिकल है इसके अंदर। सो लेट्स सी वन बाय वन। 7 मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हुए हैं, ये आपने ज़रूर याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लेट्स सी। डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। मॉरिसन 2011 में आया हुआ है और ये अक्सर आता है। जैज़ इज़ द हिस्टोरिकल नावल ऑफ द पुलिटिजर्स एंड द नोबल प्राइज। गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह एक एक पॉइंट की समझ आएगी। विनिंग द अमेरिकन ऑथर ऑफ द मॉरिसन, द नावल forms the second part of the Morrison's Dantisque trilogy। मैंने अभी बताया था ट्रिलॉजी का मतलब है, नोट कर लें, ट्रिलॉजी का मतलब है 3। जब कोई 3 पार्ट्स में कोई चीज़ डिस्कस होती है तो उसको ट्रिलॉजी कहते हैं। तो ये उसने, मैंने पहले बताया कि जैसे उसने ये जैज़ जो है वो दूसरे नंबर पे ये लिखा है। तो ऑन अफ्रीकन
अमेरिकन हिस्ट्री, बिगनिंग विद द बिलव्ड एंडिंग विद द पैराडाइज। यानी दूसरे नंबर पे फिर क्या है, इसने 3 जो नावल लिखे हैं ट्रिलॉजी की शक्ल में, तो पहले नंबर पे उसका क्या है, बिलव्ड, दूसरे नंबर पे जैज़, और तीसरे नंबर पे ये जो है पैराडाइज, ये इसका नावल है। मॉरिसन इज़ अ मॉडर्न नावलिस्ट, मॉडर्न नावलिस्ट है मॉरिसन, एंड नावल हैज़ प्रेजेंटेड हॉर्ड ऑफ न्यू थीम। हॉर्ड का मतलब लिखें कलेक्शन, इसका मतलब लिखें कलेक्शन, एंड मोटिव्स, एंड हैज़ मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द सिंबल। एक्सटेंसिव होता है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा, एक्सटेंसिव सिंबलिज्म, और बहुत सारी सिंबलिज्म उसने यूज़ की हैं, इसलिए ये नावल जो है जल्दी किसी को समझ नहीं आता, हमें इसको समझना पड़ता है। वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द नावल इज़ अ वायलेंस, और इसमें वायलेंस किसकी शक्ल में दिखाया गया है, वॉयलेट की शक्ल। वॉयलेट जो है कि वायलेंट किस्म की लेडी है, और उसने उसके वो फेस को वो कैसे स्लैशेस करती है जब उसे पता चलता है कि वो मेरे हस्बैंड के साथ सोई है या उसने रिलेशन बनाया है। आगे हम देखते हैं कि जैज़ बिगिन विद द रिकैप ऑफ द डॉर्कस मर्डर्स एंड डिफेसेस वायलेट्स अटैक ऑन हर कॉप्स। कॉप्स होती है जो उसकी मैयत है, उसके ऊपर जब से वो हमला करती है, और कैसे हमने देखा कि वो उसको करती है, स्लैशेस करती है उसके फेस को। द कपल दैट किल, एंड देन हम क्या कहते हैं, डिफेसेस द यंग गर्ल सीम इमीडिएटली टू बी इवल and immoral character, but surprisingly Morrison goes on flesh them out to explain in the part that, और उसमें वो दिखाती है ब्लैक लोग कितने इमोशनल, जज्बाती हैं। Their violent acts stem from the suppressed anguish and disreputed childhood. Morrison traces the violence of the city characters and back to the Virginia, where the generations of enslavements and the poverty tore families apart. अब देखिए, कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा लड़ता है ना, तो वो एक दिन की अलामत नहीं होता कि वो एक दिन में उसमें ये लड़ाइयाँ और ये सब कुछ आ गया, वो बहुत सारे हालात से गुजरा होता है। सो वेन एवर शी डिस्कस अबाउट द वायलेंट एंड शी स्लैशेज द फेस ऑफ डॉर्कस व्हेन शी वाज डेड, एंड वी हैव सीन वन थिंग मोर, शी टेक्स अस टू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हम देखते हैं कि वो हमें फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाती है, और फिर वो हमें बताती है कि हाउ ऑल दैट अकर्ड, और ये कैसे सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ कैसे हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ, दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यानी जब वो डिस्कस करती है कि वॉयलेट ने ऐसा ऐसा किया है, तो वॉयलेट शी टेक्स अस बैक टू द लाइफ ऑफ द वॉयलेट। वॉयलेट didn't have parents like that, so she was brought up by the true valley. So all that collected together, that creates such kind of a mental condition for her. She started slashing the face of Dorcas. She also fight. She even does not have good relation with the neighbors, and the people just call him a queer and strange kind of lady. Nobody loves her. सो क्योंकि वो एक बड़ी आइसोलेटेड सी लेडी थी, इवन हस्बैंड के साथ भी उसके ताल्लुक नहीं अच्छे, तो ये सारा एक दिन में तो नहीं हुआ, दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो शी interweaves allusions to the racial violence and her story with the neutral tones, the historical fact. Further, her descriptions of the scenes are often filled with the violence, as she discusses the buildings with the cut but the razor-like line of sunlight. Even her narrative is a violently constructed, the story of wrenched apart. wrenched का मतलब लिखें drag, किसी को खींचना, fragmented and retold. In a way, the mirror is splintered. splintered का मतलब होता है किसी चीज़ का shatter हो जाना, बिखर जाना. Identities of the novel, practical characters. अब नेक्स्ट देखिएगा, एक हेडिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, वैसी ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी. एंड नाउ हियर इज, प्लीज सी, ये है जी दूसरी हेडिंग है इस नावल की. द अनदर थीम ऑफ द नावल इज़ द मदरहुड. मदरहुड का मैंने देखा कि फुकदान है नावल के अंदर. उसने मदरहुड नहीं दिखाई. क्यों नहीं दिखाई? कि जो ब्लैक पीपल हैं उनकी भी कोई मदरलैंड नहीं है. मदरहुड एक सिंबल है. मदरलैंड तो सिंबल होती है ना, माँ की,
आपका मुल्क आपकी माँ की, कहते हैं ना, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, आई कैन डाई फॉर माई मदरलैंड. So what is the motherland? Over here the black people, they feel that they don't have their motherland. They are just adopted slave. वो एक अडॉप्टेड स्लेव हैं, उनकी अपनी कोई जगह ही नहीं है. तो उसने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उनकी मदर नहीं दिखाई कैरेक्टर सी. मदर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम द लाइव्स. मॉरिसन कैरेक्टर्स हैविंग अबैंडन्ड, अबैंडन होता है ख़त्म होना, ना होना. देयर चिल्ड्रंस डाइड, सिंपली डिसअपियर्ड. The absence of the mother also reflects the absence of the motherland. अब आप इसको सिंपली लिखेंगे कि absence of जो मदर, उसने मदर नहीं दिखाई या उसकी प्रेजेंस नहीं दिखाई नावल के अंदर, तो it presents that she is showing the condition of the black people. They consider themselves, they are not having motherland. They don't have country. They have country but they are slave over there. वो वहाँ पे as a slave लाए गए हैं. So let's see further. Let me clear this. Yes. यहाँ पे देखिएगा, community searches for the way to make American at home despite the horror of the dislocations and slavery. यानी black people की जो condition है वो एक slavery की मानद है. They are living in a slavery. The mother also signifies a common cultural and racial heritage that eludes the characters as the struggle define themselves. The word mama rests on the tip of the characters and tongues, and it's an unconscious lament for the lost home and feeling of the security. During one of the wallet visit, जब wallet visit करती है, वॉलेट्स की जो विजिट है, एलिस मैनफ्रेंड ब्लर्ट्स आउट उसके मुंह से निकलता है एकदम, ओ मामा. सो यानी उनकी मदर नहीं है, बेचारे सफ़र कर रहे हैं. एंड देन कवर्स हर माउथ, फिर वो अपने मुंह को बंद कर लेती है. कौन? एलिस मैनफ्रेंड. एलिस मैनफ्रेंड कौन थी? एलिस मैनफ्रेंड, शी वॉज द आंट एंड शी वॉज द गार्डियन ऑफ द डॉर्कस. Alice Manfred blurts out, "Oh, Mama," and then covers her mouth, shocked at her own vulnerability. Dorcas also referred to her mother's out of nowheres as she lies on the deathbed. और जब डॉर्कस डेथ बेड पे होती है तो वो भी, उसकी भी मदर नहीं है, वो किसको पुकारे? Thinking I know his name but Mama won't tell. Morrison narrators even present in the lives and the histories of her characters double as a kind of mothers for the text, tending to the community of the Black Harlem. So let's see next. दूसरी तीसरी हेडिंग क्या आ रही है? तीसरी हेडिंग है जी, दिस लीड्स टू द मदर थीम्स ऑफ द नावल. यानी ये सारी सिचुएशन एक मदर का थीम भी साथ डिस्कस करती है कि मदर जो है उसको डिस्कस नहीं किया गया, मदर नहीं है बट इट इज़ प्रेजेंट, लेकिन उसका थीम जो है वो प्रेजेंट है. कि मदर जब डिस्कस ही नहीं की तो मदर को फील करते हुए कैरेक्टर नज़र आएंगे. जब आप लेट सपोज मैं, अब हमारी मदर नहीं है तो हम जब भी कोई चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम उसको फील करते नज़र आएंगे. उनका घर नहीं है बेचारों का, तो ब्लैक लोग आपको नज़र आएंगे कि दे आर मिसिंग देयर होमलैंड, कि उनकी होमलैंड फिर कौन सी है. विच इज़ द रेशियल डिफरेंस विद द शेप शिफ्टिंग, ओमनी प्रेजेंट नरेटर्स, जैज, इमर्सिस का मतलब होता है अब्सॉर्ब करना, इन्वॉल्व होना, डीपली इन्वॉल्व होना. यानी हमें यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट एक नरेटर लगता है कि जो हर चीज़ जानता है और वो बताता जाता है. इट्स रीडर्स इन द साइकीज एंड द हिस्ट्रीज ऑफ इट्स अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स. द बुक attempts the mirror from the anthropological and the fictional standpoint. Anthropological, the study of the human, concerns of the community and the root of their collective search of identity. यानी हम ये देखते हैं कि करैक्टर जो है वो अपनी कलेक्टिव सर्च में है अपनी आइडेंटिफिकेशन की. तो जैज़ जो है वो बेसिकली है ही एक आइडेंटिफिकेशन की अलामत, एक म्यूज़िक की किस्म है जो कि ब्लैक लोगों ने बनाई है. और उन्होंने 1920 में जब ये मूवमेंट चली थी, दे विल हैव देयर कल्चर, दे विल हैव देयर आइडेंटिफिकेशन इन पेंटिंग, इन लिटरेचर, इन कल्चर्स एंड एवरीथिंग एल्स. सो दे विल बी हैविंग. The narrator does not travels from the self-contained universe of the Black Harlems and does not focus on the lives of the white characters, saves for the Vera Lewis Gray. The legacy of the slavery reverberates
रेवरब्रेट का मतलब होता है किसी की आवाज़ गूंजना, बात बात हमें स्लेवरी की जो गूंज है उसके अंदर से नज़र आती है। हाँ जी, वीरा ल्यूज जो है वो एक या वाइट वोमेन है, उसका जो फादर है वो वर्ड्सवर्थ ग्रे है, लेकिन वो वर्ड्सवर्थ ग्रे जो है वो हेनरी लेस्ट्रॉय को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक है। कोई वाइट मैन से रिलेशन होते तो वो फ़ौरन अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर देता। सो ही वॉज दे आर सफरिंग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें नजर आते हैं। सो लेट्स सी फर्दर। अच्छा, यहाँ पे देखें, द नरेटर डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम द सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स ऑफ हार्लेम्स एंड डज फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ द वाइट कैरेक्टर स्लेव्स फॉर द वीरा ल्यूज। आगे देखें, द लेगेसी ऑफ द सिल्वर रेवरब्रेट्स थ्रू द स्टोरी ऑफ द इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है अराइवल। इनफ्लक्स ऑफ द सिटी रिफ्लेक्ट्स डिस्टेंसिंग फ्रॉम द पास्ट, यानी ये जो चीज़ है वो हमें उसके अंदर से नज़र आती है, एक इको करती हुई उसकी गूंज नज़र आती है एक स्लेवरी की, कि वो स्लेव समझा जाता है। माइग्रेशन का थीम जो है, जैसे मैंने डिस्कस किया, माइग्रेशन द सिंपल you will see the migration theme of migration, the character are moving from one place to another। वायलट जो है और जो मूवमेंट करते हैं वो एक जगह से दूसरी तरफ माइग्रेट करते हैं। वीरा ल्यूज जो है वो माइग्रेट करती है, गोल्डन ग्रे जो है वो माइग्रेट करता है। हमने देखा कि वो विलियम यंग जो है वो माइग्रेट करता है, जो उसकी जो मेलबोनी जो है उसका नेफ्यू है। Almost all the Morrison character migrates through the New York and from other part of the country in the attempt to escape the economic and the social prejudice in the search of the new start in Harlem. The motive of the migration goes hand in hand with the numerous allusions, birds and recurs frequently in the narrations of the character histories। इसकी समझ आ गई? बड़ा सिंपल है कि करेक्टर जो है वो हमें माइग्रेट करते नज़र आए हैं। इसमें आप मेंशन करेंगे ये करेक्टर जो हैं ये माइग्रेट करते हैं, आप इनको डिस्कस करते हैं। माइग्रेशन का थीम जो है हमें इसमें वाज़े मिलता है। ये सारा पढ़ लीजिएगा, इजी है। ये ना डबल हो गया मुझसे, ये ठीक नहीं आया था, तो इसको हम डिस्कस नहीं है, इसको नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। वो मैंने डबल इसके पेज किए थे, तो नेक्स्ट पे आ जाए। ये वही है, तो ये ना वो ठीक नहीं आया था। अच्छा जी, एस्टेब्लिश रूट ऑफ द कनेक्शन वन प्लेस टू इक्वल्स द होमलेस। आगे यहाँ से देखें, नेक्स्ट टू द माइग्रेशन अनदर रिकरेंट थीम ऑफ द मोटिव ऑफ द नावल इज आर्फन। अब आर्फन का थीम, आर्फन कौन कौन है, आर्फन कौन कौन सा है, आर्फन का मतलब क्या होता है, उसमें मैंने साथ लिख दिए हैं, ये मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिख दिए हैं, ये आपने देख रहे हैं, परेशान नहीं होना आपने। इट्स प्रिटी ईजी, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सो यू नीड लिटिल अटेंशन। आप थोड़ी सी अटेंशन से इसको देखेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। इधर देखें ज़रा, मैंने डिस्कस कर दिया, साथ लिख दिया कि जो और वॉलेट जो हैं ये दोनों माइग्रेट करते हैं, ऑर्फन थे, ठीक है जी। डॉर्कस जो है वो एक ऑर्फन थी। गोल्डन ग्रे एक ऑर्फन की तरह ज़िंदगी गुजारता है, जबकि उसके पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक और उसके बाद वाइल्ड जो है औरत, वो भी एक ऑर्फन होती है। तो ये सारे जो करैक्टर हैं ये दे आर ऑर्फन एंड इट शोज़ अ ऑर्फन थीम। एक ऑर्फन का थीम भी बन जाता है। हाँ जी, पहली बात कौन सा थीम है देखिएगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन एज द रिकरेंट थीम ऑफ द मोटिव इज द नॉवल इज ऑर्फन्स। द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग पेरेंटल एब्सेंस जो है, प्रेजेंस जो है हमें नज़र नहीं आती। इन जैज टाइज टुगेदर मैनी ऑफ द मॉरिसन कैरेक्टर्स एंड द कनेक्ट्स देयर शेयर्ड सैडनेस टू वन कॉज रेज बाय द आंट्स। यानी अक्सर हम देखेंगे कि उनको किसी और ने उनको रेज किया है, जैसे उनकी परवरिश किसी और ने की है। ग्रैंड पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड पेरेंट्स वायलेट, जो एंड डॉर्कस आर एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यहाँ वहाँ बेचारे फिरते रहे, एंड फील दैट दे आर हैंडेड ओवर विद नो कंट्रोल। उनका कोई कंट्रोल नहीं उनके ऊपर, और बेचारे परेशान, unable to control the fact that they are orphans and placed in a home without the choice in the characters are relocated। उसके बाद the way they resonates with the paternalistic adoption of slave। बिल्कुल ऐसे जैसे उनको अडॉप्ट किया होता स्लेव की तरह, यानी उनकी कंडीशन ऐसे है करैक्टर की बेचारों की कि वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो अडॉप्टेड स्लेव हैं, स्लेव की तरह हैं। हाँ
जी, नेक्स्ट देखें। उसके बाद मॉरिसन ने जैज़ का जो है, मॉरिसन आल्सो हैव मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सिंबलिज्म। टोनी मॉरिसन ने बड़ा एक्सटेंसिव यूज़ किया है सिंबलिज्म का। तो सिंबलिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने पहले बता दिया, आपने बड़ा डिटेल डिफाइन करना है कि जैज़ म्यूज़िक जो 1915 1920 में एक मूवमेंट चली थी, उसमें वो अपना कल्चर में, पेंटिंग में, लिटरेचर में और हर चीज़ में उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने की कोशिश की ब्लैक पीपल ने, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उसमें ये जैज़ म्यूज़िक भी उनका शामिल है। तो जैज़ जो है वो बेसिकली एक म्यूज़िक, एक सिंबल है, आइडेंटिफिकेशन है, एक सिम्बॉलिक टाइटल है, ठीक है जी, म्यूज़िक का ब्लैक लोगों का। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें न्यू ऑरलेंस और उसके बाद न्यूयॉर्क और ऑरलेंस और वर्जीनिया और इस सारे इलाके से इनका इकट्ठा होना करैक्टर का न्यूयॉर्क की तरफ, ये ज़ाहिर करता है कि वहाँ पे ये एक सिंबॉलिक, वहाँ पे ये म्यूज़िक बहुत मशहूर था और उसको उसने एज बतौर सिंबल यूज़ किया है। Morrison has also made extensive use of symbolism in the novel. Symbolism is a device which enriches the work of the art and impart greater meanings to it. अब जब सिम्बोलिज्म यूज़ होती हैं तो वो मानी जो हम नहीं बता सकते एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से हम उनको भी बता लेते हैं। सिम्बोलिज्म उसको इनरिच कर देता है, ज़्यादा मानी दे देता है। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो मैं दूसरा कहूँ ही इज़ रनिंग लाइक अ विंड, वो ऐसे दौड़ रहा है जैसे विंड दौड़ती है। तो दोनों में बड़ा एक इमेजेस लगा के मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल यूज्ड टू द नॉवल इन द म्यूजिक एज वेलकम बैक। वेलकम बैक। Okay. Morrison also made an extensive use of symbolism
In the novel, symbolism is a device which enriches the work of art and impart greater meaning. सिंबल आप यूज़ कर लेते हैं ना, सिंबलिज्म, तो मीनिंग रिच हो जाते हैं. जैसे वो जैज का सिंबल है, जैसे वो रेड विंग्स बर्ड का सिंबल है, जैसे वो डॉकस का एक यूथ का सिंबल है, वॉयलेट और जो हैं वो एक ओल्ड का सिंबल है, और जो है लस्ट, ओल्ड पीपल कितने लस्टी हैं वो दिखाया गया है, ब्लैक पीपल किस तरह वायलेंट हैं ये दिखाया गया है. तो these are the symbol. The most important symbol used in the novel is the music. As the name of the novel implies, the music operate with the thematically and formally to divide the structure, यानी provide the structure of book. तो ये क्या एक symbol उसने use किया. So it is basically the symbol structure of the book. The jazz music of the 1920, मैंने बताया कि ये उस वक्त situate the narratives in the specific cultures of the historical. Black people भी अपनी एक cultural identification चाहते हैं, तो for that they have to do effort. कैसे वो आइडेंटिफिकेशन अपनी लाएंगे? दे वांट टू ब्रिंग आइडेंटिफिकेशन. उन्होंने अपना कल्चर बनाया, पेंटिंग बनाई, म्यूज़िक बनाया, ठीक है, पोइट्री बनाई अपनी. सो दे स्टार्टेड वर्किंग इन नावल, पोइट्री, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग एंड लाइक दैट. So when the black aesthetic styles was gaining ground in the New Orleans इलाका है USA का, न्यूयॉर्क, इन इलाकों में वो बना रहे थे, तो हम देखते हैं कि वो करैक्टर भी उधर ही मूव करते हैं. बोथ द सिटीज़ एंड द वुड्स ऑफ द वर्जीनिया आर डिस्क्राइब हैविंग देयर ओन म्यूजिक एंड रिदम. यानी ये उस वक्त मूवमेंट वहाँ पे चल रही थी, तो लोग भी वहाँ भी जा रहे हैं, यानी जंगलों के इलाकों से भी वो वर्जीनिया के इलाकों से कहाँ जा रहे हैं, न्यू ऑरलीन, न्यूयॉर्क, हार्लेम, इस तरह की प्लेसेस पे. म्यूजिक आल्सो स्पीक टू इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड डीप लेवल व्हेन एलिस मैनफ्रेड कौन थी? एलिस मैनफ्रेड, शी वाज द गार्डियन ऑफ द डॉर्कस की गार्डियन थी. नीचे आए जी, ये डबल तो नहीं था. इसके बाद however यहाँ से देखें, however music can also be restorative as a Phyllis facilitate. Phyllis कौन थी? Who was Phyllis? Arya, you tell me, who was Phyllis? Phyllis कौन थी? Phyllis was friend, Dorcas की friend थी. She was a friend of the Dorcas. So however the music can also be restorative. Phyllis facilitate healing the process between Joe and Violet. वो Joe और Violet दोनों की दोबारा से consensus करवाती है, उनको एक बना देती है by bringing over the records of watching them dance. There are some minor symbols as well, like the red wings bird according to the local Virginia laws. Virginia यानी उनकी स्टोरियों के मुताबिक, उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें वो कहते थे कि जो वाइल्ड, जो रेड विंग्स जो है ना, ये बर्ड जो है अलामत है किसकी? एक वाइल्ड की, वाशिद. Approximately always indicate the green dress that passes hand over to the Vera Lewis grave. Hope you are over here. Okay, hope you are listening to me. So the green dress that passes hand over from Vera Lewis के जो वो the green dress that passes hand over from Vera Lewis to Gray to Joe's mother. यानी वो जो जोस की मदर को जो वो ड्रेस वगैरह वीरा ल्यूज से दिए जाते हैं, वो भी एक ऐसे है कि जैसे वाइट जो हैं वो गरीबों को यानी पुअर और स्लेव लोगों को दे रहे हैं. तो दिस इज आल्सो अ सिंबल. While connect the novel's characters and suggest the way in which their stories intersect. A fine garments worn by the daughters of the wealthy slave owner. The dress finds its way into the rustic cabins of the girls' black lovers. Henry destroys the empty shells of its absent owners.
The dress represents Vera Liu's abandonment and the social structure that force her to move away. However, the dress changes meaning when her son Golden Grace drapes it over Wild's body, a conciliatory gesture that ultimately undoes the work of her family racist background. अब वो जो वाइल्ड को जाके दोबारा सपोर्ट करता है, वाइल्ड को वो हेनरी लेस्ट्रॉय के यहाँ लेके जाता है, उससे जो पैदा होता है, तो वो गोल्डन ग्रे का जो वर्क है वो एक ऐसे जैसे कोई यानी उसके जो बैकग्राउंड की तरफ से जैसे नहीं कॉन्सिलेशन करना, रिकन्सिलेशन होती है कि वो अब उस मामले को ठीक कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा उन्होंने किया था कि वो वीरा ल्यूस को घर से निकाला था, वो एक उसकी सिंबल है. Even the character novels are symbolic as one way or other. For example, one of the novels' central relationship is a sustained romantic affair with Jose and Trace. 50-year-old and Dorcas who is her late teens. हम देखते हैं कि इसके अंदर फिर एक और जो है थीम नज़र आता है कि वो थीम क्या है कि रिलेशनशिप जो रोमांटिक अफेयर जो है वो भी दिखाया गया है बैकग्राउंड में. Throughout the novel, the murdered girl become a symbol of youth. अब जो यहाँ पे murdered girl है, जो डॉर्कस है, वो यूथ की सिंबल है कि वो टीन है और वो उसको सड्यूस किया है किसने, उस जो ने, जो कि बूढ़ा शख्स है, जो उसको सड्यूस कर लेता है और उसको चंद ज्वेलरी और कॉस्मेटिक के बजाय उसको सेक्स स्लेव बनाए हुए है और वो उसको मैनिपुलेट करना चाहता है कि जैसे वो कहेगा वैसे वो करेगी. Throughout the novel, the murdered girl become a symbol of youth. Her aunt Alice Manfred identified Dorcas' youth with the budding. Budding का मतलब होता है कि किसी चीज़ का खिलना, budding, grow होना. Budding sexuality that has brought calamity. वो बताती है डॉर्कस की यूथ के बारे में. एलिस मैनफ्रेड आइडेंटिफाई करती है कि कैसे एक ग्रोइंग सेक्सुअलिटी जो है वो शिकार हुई किसका, कैलेमिटी का, डिस्ट्रक्शन का. The motive of the Gardens Eden present the image of the Dorcas as a young Eve who is enticed girl and enticing. वो ऐसे है कि जैसे ईव का, एडम ईव का आपको पता है कि आदम और जो हवा की जो स्टोरी है हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ी, उसमें वो बिल्कुल कहता है कि जैसे वो सैटर्न उसको सड्यूस कर लेता है, ऐसे जो भी एक सैटर्न बन के उसको सड्यूस कर लेता है. Waller traced the reactions to Dorcas in similar. Her jealousy stems from her husband affair and she can't help to notice the contrast between the aging saging body and Dorcas' youthful fuller figures. Violet tries to drink malts and eat multiple meals to regain the pounds other youth and her competitions with the dead girls. Ironic because Violet does not want to compete with the young and that असल में ये जो वो compete करती है ना कि वो शायद बूढ़ी थी इसलिए उसका हस्बैंड जो है उससे दूर हो गया, एजिंग और सेजिंग फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो वो मल्टीपल खाने खाती है, वो सारा कुछ करने की कोशिश करती है. वो कहते हैं कि असल में वो ये चाहती थी कि उसकी बेटी होती कोई इस तरह की डॉर्कस जैसी, तो वो भी एक कंट्रास्ट दिखाया गया है. In conclusion, we can say that the writing of the jazz, Morrison takes a new task, a new risk. Jazz, for example, does not fit the classical novel format in terms of the design, sentence structures, and narrations. Just like the music, this novel is named after the work in improvisational. In this work, she is influenced not only by the jazz, blues, and gospel music. यानी इन चीज़ों से वो influence